बात्या निसर्ग ने आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र Maharashtra coast between Harihareswar and Daman, very close to south of Alibag during afternoon. That means around 1 o'clock to 4 o'clock. So while it will be crossing the coast, it will have the strong wind speed, as I told, 100 to 120 kilometers per hour over especially districts of Raigad, Thane and Mumbai. In addition to that, we can also expect wind speed of about 80 to 90 kmph over Ratnagiri and Sindhudurg districts and also over Palghar district of Maharashtra. We are also expecting 60 to 80 kilometers per hour wind speed over Navsari and Valsad district of Gujarat. In addition to this wind speed, which can have the structural damages, especially over Thane, Mumbai and Raigad districts, in terms of the uprooting of trees, breaking of tree branches, damage to thatched houses, concrete thatched houses, tin houses, asbestos houses, and also shifting of loose structures, making it projectiles, and thus damaging the objects, and hoardings, etc., also can be affected. It can also cause impact in the rail and road traffic. So we have advised not to have any traffic, rail and road traffic. People should be in safe place. Those who are in unsafe place, they should move to the safe shelters. And in addition to these winds, there will be also heavy rain. Already heavy rainfall has started over the Konkan area. Heavy to very heavy rainfall has been recorded in the South Konkan districts. And now it is picking up and it will go to heavy to extremely heavy rainfall over Konkan districts, especially all the Konkan districts you can say, including Raigad, Thane and Mumbai. We are also expecting a tidal wave of about 1 to 2 meter height to inundate low-lying areas of Raigad and Thane and Mumbai districts at the time of landfall. That is in the afternoon of today. So there will be multiple hazards in terms of heavy rainfall, winds and the storm surge. So therefore, people should immediately move to the safe places and they should not come out of the safe place. Then that will help them and also to the society to save life and property. So, sir, this cyclone will week after landing. After how much time it will be weakened? After landfall, it will continue to move north-northeastwards across Madhya Maharashtra, and it will maintain the intensity of cyclone for about 6 hours. So by midnight, it will weaken, and further by morning of tomorrow, it will become a depression. सर, साइक्लोन आने वाला है, एक सीवियर साइक्लोन है महाराष्ट्र गुजरात के लिए. किस टाइम आएगा, क्या उसकी तीव्रता क्या होगी, कितना नुकसान कर सकता है सर? साइक्लोन निसर्ग अभी इंटेंसिफाई होकर आज सुबह एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है. इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करके आज आफ्टरनून में ये तट को पार करेगा एंड तब इसका विंड स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली ओवर थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स. इसके साथ साथ जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग है वहाँ भी विंड स्पीड आपका 80 टू 90 kmph हो सकता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी. और गुजरात का जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड 60 टू 80 kmph तक हो सकता है. सो ये जो विंड स्पीड है इसमें आपका पेड़ गिर सकता है और ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स भी बेंडिंग हो सकता है और ओल्ड पोल्स भी अपरूटिंग हो सकता है. टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स भी डिसरप्टेड होगा और इसके साथ साथ थेचर्ड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस भी एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है लो लाइंग एरिया इन कोस्टल बेल्ट पे. और जो हेवी रेनफॉल है वो अभी ऑलरेडी जारी है कोस्टल बेल्ट पे और कोंकण, साउथ कोंकण एरिया में ऑलरेडी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एंटायर कोंकण में आज बारिश जारी रहेगा और हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है. इसके साथ मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का उम्मीद हम कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट ये है कि जो टाइडल वेव है वो 1 से 2 मीटर हाइट में एस्टोन के टाइड से ऊपर आ सकता है आफ्टरनून पे और ये थाने, रायगढ़, मुंबई डिस्ट्रिक्ट का जो लो लाइंग एरिया है इसमें इनंडेशन करा सकता है. तो इसका हिसाब से आपका 3 तरीके से खतरा है, एक हेवी रेनफॉल है, एक विंड है और एक स्टॉर्म सर्ज या टाइडल वेव है. इसलिए हम यही एडवाइस दे रहे हैं कि लो लाइंग एरिया में जो अनसेफ प्लेसेस में है वो सभी सेफ शेल्टर में रहना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए जब तक साइक्लोन है. और ये इसके कमजोर पड़ने की कब तक उम्मीद है सर? ये लैंडफॉल होने के बाद लगभग 6 घंटा तक इसका साइक्लोन इंटेंसिटी रहेगा, इसलिए मिडनाइट के बाद ये वीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाकर ये डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा.
आपण शुणुले आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र जहाँ सूचना दौले आज अपराह ही लैंडफॉल कर निसर्ग और लैंडफॉल समय पवन बेग 110 रु 120 किलोमीटर पर्यंत जापे खासकर महाराष्ट्र रायगढ़ थाने और मुंबई रे यार अधिक प्रभाव रही लैंडफॉल करने पर 6 घंटा धरी प्रभाव अनुभूत हम एबेठारु प्रबल वर्षा आरंभ हो जाइए तेबे लैंडफॉल समय जहाँ आशंका करा जाउछि 1 ରୁ 2 मीटर जुआर उठिपे एथि समस्त को सुरक्षित स्थान रहिबा परामर्श देइछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। नमस्कार मु भवानी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक शेयर फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु बदलुछि समय बदलुछि अभ्यास ओटीवी डिजिटल से विश्वास।